اسموگ کے بادلوں نے لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں بدستور پہلے نمبر پر ہے۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 586 ریکارڈ کی گئی ہے۔ سید مراتب علی روڈ پر آلودگی کی شرح 868 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ یو ایس کونسلیٹ میں فضائی آلودگی کی شرح 728 ریکارڈ۔ ڈی ایچ اے فیز 8 میں فضائی آلودگی کی شرح 611 ریکارڈ کی گئی ہے۔ عسکری 10 میں فضائی آلودگی کی شرح 602 ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہری ماسک کا استعمال یقینی بنائے، ماہرین نے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گی کومل اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کومل، بتائیے گا۔ جی بالکل، اسموگ کے باعث عوام جو ہے وہ ماری ماری پھر رہی ہے، نہ تو سانس لینا جو ہے وہ آسان ہو رہا ہے، نہ ہی اس کھلی آب و ہوا میں گھومنا پھرنا جو ہے وہ آسان نظر آ رہا ہے۔ ہر طرف جو ہے وہ مشکلات نے گھیراؤ میں لے لیا ہے۔ لاہور شہر جو ہے وہ اسموگ کے گھیراؤ میں آ چکا ہے بہت برے طریقے سے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے شہر لاہور پر اسموگ ایک عذاب بن کر اتر آیا ہے، اور یوں جو ہے وہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح میں بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ AQI کی مجموعی شرح 586 ریکارڈ کی گئی ہے۔ بھر میں لاہور پہلے نمبر پر آلودہ ترین قرار دیا گیا ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں سب سے پہلے نمبر پر سید مراتب علی روڈ 868، یو ایس کونسلیٹ میں 728، فیز 8 DHA میں 611، عسکری 10 میں 602 ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ روز بروز بڑھتی ہوئی جو اسموگ کی شرح ہے، اس کی وجہ سے معاملاتی زندگی میں بھی کافی زیادہ متاثر ہو چکی ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی جانب سے کل پریس کانفرنس میں بھی بتایا گیا کہ اگر صورتحال جو ہے وہ انڈر کنٹرول نہ ہوئی تو جو لاک ڈاؤن والے کے دنوں میں جو احتیاطی تدابیر اپنائی گئی تھی، جو صورتحال تھی، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس لاک ڈاؤن کی طرف کو جو ہے وہ جانا پڑے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محکمہ ماحولیات کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اینٹوں کے بھٹے مسمار کیے جا رہے ہیں، فیکٹریوں کو سیل کیا جا رہا ہے جو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر کنورٹ نہیں ہوئی ہیں۔ ایون یہ بھی جو ہے وہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اوپن ایریا میں باربیکیو کرنے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ صرف اس صورت میں جو ہے وہ باربیکیو کیا جا سکتا ہے اگر وہاں پہ ایگزاسٹ فین وغیرہ موجود ہوں گے۔ مطلب جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، اگر اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا تو عوام جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے صحیح، لیکن ایک فضا تو ہم نہیں کہیں گے کہ وہ اچھی ہے، لیکن اپنی احتیاط کو یقینی بناتے ہوئے باہر کا رخ کر سکتی ہے۔ وہیں دوسری جانب جو ہے وہ پارکوں میں جانے والے شہری بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ جو چھٹیاں دی گئی ہیں وہ اس لیے نہیں دی گئی کہ عوام جو ہے وہ سیر سپاٹے کرے، یہاں پہ گھروں میں محدود رہیں، کیونکہ فضا باہر کی بہت زیادہ زہریلی ہو چکی ہے۔ اور تعلیمی ادارے بھی اسی لیے بند کیے گئے ہیں۔ تعلیم سے بڑھ کر جو ہے وہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے صحت بہت زیادہ ضروری ہے، اور صحت مند رہنے کے لیے آپ کو اپنی حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا، ایسا جو ہے وہ ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ وہیں اگر مصنوعی بارشوں کے ہم متعلق بات کرتے ہیں کہ مصنوعی بارشیں کیوں نہیں کروا رہے، تو اس پر بھی ماہرین کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مصنوعی بارش ہونے کے لیے بھی ایک سرٹن بادلوں کا ہونا ضروری ہے، جن میں آبی بخارات ہوں گے تو بھی ایسی بات ہے کہ بادل بھی بنیں گے، بادل بنیں گے تو بارش ہوگی، اور اس بادل بننے کے سفر تک جو ہے وہ ہمیں انتظار کرنا پڑ رہا ہے کہ کب وہ بادل بنے، آسمان کا رخ کریں، اور کب جو ہے وہ مصنوعی بارش کروائی جائے۔ تو ماہرین کی جانب سے فی الوقت تو وہ بھی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے، کیونکہ لاہور شہر میں فی الوقت بارشوں سے متعلق بھی کوئی امکانات نہیں بتائے جا رہے۔ لاہور کی فضا جو ہے وہ بہت زیادہ زہریلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج تو باقاعدہ طور پر کالجز کو بھی مکمل طریقے سے بند رکھنے کے حوالے سے ہدایات کر دی گئی ہیں، کیونکہ صورتحال جو ہے وہ اب انڈر کنٹرول نہیں ہو رہی۔ وہیں دوسری جانب ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسموگ کے حوالے سے ایک پلانٹ لگایا جا سکتا ہے جو کہ پانی کے چھڑکاؤ کو یقینی بنائے گا، اور جس وجہ سے جو ہے وہ اسموگ کنٹرول ہو سکتی ہے، تو اگر وہ پلانٹ نصب کر دیا جائے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک لاہور میں اسموگ کی صورتحال سے نپٹا جا سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں مشرقی ہواؤں کے حوالے سے تو وہ بھی اپنی روانی برقرار رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت کی جانب سے تکون کی شکل میں جو ہے وہ آلودہ فضائیں جو ہیں وہ لاہور کی جانب رخ کر رہی ہیں، لاہور کی حدود میں انٹر ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے فضا آلودہ سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہیں اگر ہم اقدامات کے حوالے سے بات کریں تو ہیوی وہیکلز کی انٹری پر بھی پابندی لگائی گئی ہے، خاص طور پر جمعہ اور اتوار کے روز، کیونکہ جمعہ اور اتوار کے روز لاہور کی سچویشن اس قدر خطرناک ہو جاتی ہے کہ ہیوی وہیکلز کا بھی دباؤ ہوتا ہے، ہوائیں بھی اس طرح سے نہیں چل رہی جیسے کہ چلنی چاہیے، جس وجہ سے جو ذرات ہوتے ہیں وہ دھوئیں کے ہوں، وہ آپ سگریٹ نوشی کے ہوں، وہ باربیکیو کے ہوں، وہ کوئی بھی گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں، تمام عوامل اور عناصر جو ہیں وہ مل کر لاہور کی فضا میں ٹھہر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ کومل اسلم تھیں اور تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھیں۔
मैं आपको बताएं कि एजुकेशन अथॉरिटी का छुट्टियों में ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंतजाम ना होने के बराबर हैं। ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से सरकारी स्कूलों के साथी तजब्जुब का शिकार हो चुके हैं। सरकारी स्कूलों में छुट्टी के पहले रोज़ हाजिरी ना होने के बराबर रही। स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों के पास स्मार्टफोन दस्तयाब नहीं है। असातिज़ा का कहना है कि बेशक बच्चों को स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी नहीं आता। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, माहौलियाती आलूदगी के बायस शहर में स्कूलों को, सरकारी व प्राइवेट तालीमी इदारों को भी छुट्टी दे दी गई है और ये छुट्टियां जो हैं वो 17 नवंबर तक जो हैं वो जारी रहेंगी। लेकिन स्कूलों को हदायत जारी की गई है कि वो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बच्चों की लें, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से कोई खातर ख्वाह इंतजाम नहीं हैं और सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को ये भी कहा गया है कि वो स्कूलों में हाज़िर रहें और स्कूलों से ही बच्चों को जो है वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाएं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे, क्योंकि उनका ताल्लुक मुतवस्सित तबके से घरानों से होता है, तो उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं दस्तयाब होता, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस लेना मुश्किल होता है और इस हवाले से असातिज़ा भी जो हैं वो तजब्जुब का शिकार हैं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानिब से ये तो अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लें। ना तो इस हवाले से अथॉरिटी ने कोई शेड्यूल जारी किया है और ना ही स्कूलों में जो है ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से कोई खातर ख्वाह इंतजाम हैं, क्योंकि बेशतर स्कूलों में IT लैब दस्तयाब ही नहीं है और अगर दस्तयाब है तो वहाँ पर इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद नहीं है। लेकिन स्कूलों के असातिज़ा को जो है हाज़िर रहने का अहकाम जारी कर दिए गए। उन्होंने कहा गया कि 100% जो है वो हाज़िरी बरकरार रखी जाए। इस हवाले से असातिज़ा ने तशवीश का इज़हार किया और मुतालबा किया कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी या तो स्कूलों में जो सहूलियात हैं इंटरनेट और कंप्यूटर लैब के हवाले से वो फराहम की जाएँ ताकि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ली जा। जी जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं, स्मोक तदारुक क्रैकडाउन, ट्रैफिक पुलिस ने जुर्मानों की बौछार कर दी है। 24 घंटे के दौरान शहर भर में 12 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। 24 घंटे में धुआं छोड़ने वाली 517 गाड़ियों को 10,34,000 का जुर्माना आयद किया गया। गाड़ियां भी बंद कर दी गई हैं। कार्रवाइयाँ ये कहाँ तक पहुँची हैं, जानेंगे। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, शहर में स्मोक की अब तक सूरत हाल की वजह से सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है और इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ऐसी गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो कि स्मोक का या फिर आलूदगी का बायस बनती हैं। अगर हम बात करें ट्रैफिक पुलिस के गुज़िश्ता 24 घंटों की, तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 12 लाख से ज़ायद के जो जुर्माने हैं वो ऐसी गाड़ियों को किए जा चुके हैं और बहुत सी गाड़ियाँ जो हैं वो पुलिस स्टेशनों में बंद भी करवाई जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक 517 ऐसी गाड़ियों को जुर्माने किए गए हैं जो कि धुआं छोड़ती थी या फिर वो आलूदगी का बायस बन रही थी। और इसके अलावा रात के वक्त ख़ास तौर पर वो ट्रैक्टर ट्रालियाँ या जो डंपर हैं जो कि मिट्टी या रेत की सप्लाई करते हैं शहर में और वो SOP की खिलाफ वर्जी करते हुए ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वकास हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। हम खबर दें कि पंजाब में 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता को आम तातील होगी। पंजाब में यौम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर आम तातील होगी। महकमा SNGAT ने आम तातील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब में 9 नवंबर बरोज़ हफ्ते को आम तातील होगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर से। जी कैसे खोखर। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत में बरोज़ हफ्ता 9 नवंबर की आम तातील होगी। इकबाल डे के वाले से ही छुट्टी होगी और पंजाब हुकूमत 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता को इकबाल डे मनाएगी और 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता को तमाम दफातर, अदारे, हस्पताल और दफातर और दिली दफातर, तहसील दफातर जो है ये बंद हो गए। ये नोटिफिकेशन पहले ही दिसंबर में जारी हो चुका है, लेकिन आज महकमा SNGAT ने कन्फर्म किया कि छुट्टी अभी तक जो है स्टैंड करती है। जी केसर खोकर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको आगाह करेंगे पंजाब में 9 नवंबर बरोज़ हफ्ते को आम तातील होगी। पंजाब में यौम इकबाल पर आम तातील होगी। महकमा SNGAT ने आम तातील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। खबर शामिल करें, हाई कोर्ट से फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू न पाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत का सेक्रेटरी माहौलियात समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। जस्टिस जवाद हसन ने अमल सुखेरा की जानिब से दायर दरखास्त पर ये समाअत की है। आपको आगाह कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू न पाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है। अदालत का सेक्रेटरी माहौलियात समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जवाब तलब कर लिया गया। जस्टिस जवाद हसन ने अमल सुखेरा की जानिब से दायर दरखास्त पर ये समाअत की है। तो हाई कोर्ट में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू न पाने के खिलाफ दरखास्त पर आज समाअत हुई है। अदालत का सेक्रेटरी माहौलियात समेत
दीगर फरीकैन को नोटिस जवाब भी तलब कर लिया गया। जस्टिस जवाद हसन ने अमल सुखेरा की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत की है। समाअत का मज़ीद अहवाल जाने के मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। सेक्रेटरी माहौलियात और डीसी माहौलियात को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पे ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो 3 साल की बच्ची है और मज़ीद उसमें अदालत को ये भी बताया गया कि पंजाब में इस वक्त बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा और रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी के बाद इस वक्त जो शहरियों की ज़िंदगी है वो जीर्ण हो चुकी है। मज़ीद ये भी कहा गया कि एवरेज ज़िंदगी में 5.5 वर्ष की कमी वाक़या हुई है। मज़ीद ये भी कहा गया कि मोटरसाइकिल से निकलने वाले धुएँ स्मोक का बायस बन रहे हैं और मज़ीद ये भी बताया गया कि इस वक्त सड़कों पर धुआं छोड़ने मोटरसाइकिल बगैर फिटनेस के चल रही हैं। ये इसमें इस्तदा ये की गई थी कि पंजाब हुकूमत को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया जाए और पंजाब हुकूमत को आर्टिकल 199A के तहत बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का हुक्म दिया जाए। इस पर अदालत ने आइंदा समाअत पे बताया यह जा रहा है कि मंगल के रोज़ सेक्रेटरी माहौलियात और डीजी माहौलियात को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। स्मोक की सूरत हाल। वज़ीर आला की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया गया। स्मोक की सूरत हाल के पेश नज़र खेलों का मेला मुलतवी करने का फैसला किया गया है। अवामी सेहत के पेश नज़र स्मोक सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनाकिद किया जाएगा। नौजवानों को खेलों के मैदान में आगे लाने के लिए स्पोर्ट्स गाले का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। राउद इरशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी राउद इरशाद। बिल्कुल जी, चूँकि स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल है और इसी सूरत हाल के पेश नज़र अब ज़िला पंजाब की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला भी मुलतवी कर दिया गया है। स्मोक की शदीद सूरत हाल के पेश नज़र खेलों का अब जो वो मेला मुलतवी करने का फैसला किया गया है। आवाम की सेहत को लाहक खतरात के पेश नज़र स्मोक सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। जबकि इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने नौजवानों को खेलों के मैदान में आगे लाने के लिए स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद करने का फैसला किया था, जो कि अब मुलतवी किया गया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में शहरियों में मास्क बनाने की मुहिम भी शुरू कर दी है। सैकड़ों मसाजिद से स्मोक में एहतियाती तदाबीर एहतियात करने और गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने के ऐलानात का सिलसिला भी जारी है। 9000 किसानों की तरबियत, स्कूलों में स्मोक के खिलाफ लेक्चर्स का भी इनेकाद किया जा रहा है। 9 से ज़ायद मकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ FIRs का अंदराज किया गया है। राउद इरशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।